ભચાઉ તાલુકાના ખડેરના ધોળાવીરા ખાતે આજથી 16 કરોડ વર્ષ જૂના જુરાસિક ફોસિલ વુડ મળી આવ્યા, જે પૂરા ભારત વર્ષ માટે એક મહત્વની ઘટના ગણવામાં આવે છે। તો 11 થી 13 મીટર લાંબા આ જુરાસિક ફોસિલ વુડની ઘટનામાં મળી આવ્યા હતા। ભચાઉ તાલુકાના ખડેરના ધોળાવીરા ખાતેથી 16 કરોડ વર્ષ જૂના જુરાસિક ફોસિલ વુડ મળી આવ્યા છે અને તેની લંબાઈ આશરે 11 અને 13 મીટર જેટલી છે। તો રિસર્ચમાં જાણ થઈ હતી કે ફોસિલ વુડ એ 16 કરોડ વર્ષ જૂનું છે। આજથી 10 થી 11 વર્ષ પહેલા જીઓલોજિસ્ટ દ્વારા ધોળાવીરા ખાતે જુરાસિક ફોસિલ વુડની શોધ કરવામાં આવી હતી અને તે પહેલા પણ આ પ્રકારના વુડ શોધવામાં આવ્યા છે, પરંતુ આ પ્રકારના વુડ શોધ્યા બાદ તેને વન વિભાગ દ્વારા રક્ષિત કરવું જરૂરી બને છે। ધોળાવીરામાંથી મળેલા આ પ્રકારના વુડને રક્ષિત કરવા માટે વન વિભાગનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો। વર્ષ 2011 અને 12માં આ વુડને રક્ષિત કરવા માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, જેમાં તેની ફરતે ફેન્સિંગ કરવામાં આવી હતી અને લોકોની અવરજવર બંધ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ આ વુડ પ્રત્યેની ફેન્સિંગ તોડીને પણ લોકો તેના નાના નાના ટુકડાઓ લઈ જતા હતા। ધોળાવીરા ખાતે 2 જુરાસિક ફોસિલ વુડ મળી આવ્યા હતા, જેમાંથી એક 11 મીટર લાંબો અને 1.5 મીટર પહોળો છે, જ્યારે બીજી 13 મીટર લાંબો અને 1.5 મીટર પહોળો જુરાસિક ફોસિલ વુડ છે, જેમાં ક્યાંક વચ્ચેથી તેના ટુકડાઓ તૂટી ગયા છે। ધોળાવીરા ખાતે ઉત્તરની બાજુએ જ્યાં ડુંગરની ધાર છે, ત્યાં આ જુરાસિક ફોસિલ વુડ છે। આ હજારો વર્ષથી ખુલ્લામાં પડ્યું છે અને ગરમી, ઠંડી અને વરસાદને કારણે તેના ટુકડાઓ તૂટીને ખરી પડ્યા છે। તો કેટલાક ટુકડાઓ રણમાં વહી ગયા છે અને કેટલાક ટુકડાઓ લોકો લઈ ગયા છે। 2014માં ટુરિઝમ વિભાગ દ્વારા એક 8 થી 10 કરોડના પ્રોજેક્ટની અહીં શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। 10 વર્ષ પછી આ જગ્યા પર ટુરિસ્ટ આવવાનું શરૂ કર્યું હતું, ત્યારે વહીવટી તંત્રને આ જુરાસિક ફોસિલ વુડની જાણ થઈ હતી કે આ એક જાતની જીઓ હેરિટેજ છે અને આ ભૂસ્તરીય સભ્યતાને બચાવવું ખૂબ જરૂરી છે, માટે તેના પછી 2014માં ટુરિઝમ વિભાગ દ્વારા એક 8 થી 10 કરોડના પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ શરૂઆતમાં 4 થી 5 વર્ષ કોઈ પણ જાતનું કાર્ય કરવામાં આવ્યું ન હતું। 2017માં આ જુરાસિક ફોસિલ વુડની આજુબાજુ ડેવલપમેન્ટ કરવાનું કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું। આ પ્રોજેક્ટ આમ તો ટુરિઝમ વિભાગનું છે, પરંતુ તેનું કામ કચ્છ કલેક્ટરની સૂચના મુજબ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને હાલ જુરાસિક ફોસિલ વુડને યોગ્ય રક્ષણ પણ મળી ગયું છે। જુરાસિક ફોસિલ વુડની ટેકનિકલ ડિટેલ્સ જાણવી જરૂરી હતી, માટે આ પ્રોજેક્ટને વહીવટી તંત્ર દ્વારા કચ્છ યુનિવર્સિટીના અર્થ એન્ડ સાયન્સ વિભાગના હેડ ડોક્ટર મહેશ ઠક્કરને સોંપવામાં આવ્યું હતું। મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું, આ એક ડ્રિફ્ટ વુડ પ્રકારના વુડ છે। આ કાં તો પૂર અથવા તો સુનામી આવે ત્યારે સમુદ્ર કિનારે તરી આવીને રેતાળ વિસ્તારમાં ખૂંચી જાય છે અને સમય જતાં લાખો કરોડો વર્ષ પછી આ વુડ પથ્થરમાં પરિણમે છે અને ફોસિલ વુડ બની જાય છે। આ જુરાસિક ફોસિલ વુડ પર જ્યારે રિસર્ચ કરવામાં આવી ત્યારે ખબર પડી કે આ 16 કરોડ વર્ષ જૂનું લાકડું છે અને જે અત્યારે જોવામાં 11 થી 13 મીટર છે, જે ખરેખર ખૂબ મોટો હોઈ શકે છે। આ જુરાસિક ફોસિલ વુડ પર અભ્યાસ કરવામાં આવ્યું અને કયા પથ્થરોમાંથી મળી આવે છે તેની માહિતી મેળવવામાં આવી હતી। આ જુરાસિક ફોસિલ વુડ દરરોજ થોડું તૂટી રહ્યું હતું, માટે અર્થ એન્ડ સાયન્સ વિભાગના હેડ ડોક્ટર મહેશ ઠક્કરે કલેક્ટર સાથે મીટિંગ કરી હતી। તેમને આ વુડ રિસ્ટોર કરવાની વાત મૂકી હતી અને આ કામ તેમને જ સોંપવામાં આવ્યું હતું। ડોક્ટર મહેશ ઠક્કરે આ વુડના નાના ટુકડાઓને જોડવા માટે લેબોરેટરીમાં રિસર્ચ કરવામાં આવી હતી અને આ ફોસિલ વુડને 10, 25 કે 50 વર્ષ સુધી જાળવી શકાય અને કયા પ્રકારના પ્રવાહી દ્વારા આ ટુકડાઓને જોડી રિસ્ટોર કરી શકાય તે અંગે રિસર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું। આ જુરાસિક ફોસિલ વુડને રિસ્ટોર કરવાનું કાર્ય પૂરા ભારત વર્ષમાં પ્રથમ વખત થઈ રહ્યું છે। અત્યાર સુધીમાં રિસ્ટોર કરવાનું કામ 80% પૂર્ણ થઈ ગયું છે। આ જુરાસિક ફોસિલ વુડ રિસ્ટોર થઈ ગયા બાદ પણ તેને ડાયરેક્ટ ઠંડી, ગરમી, વરસાદથી બચાવવું જરૂરી છે। તેના પર કેનોપી બનાવવું જરૂરી છે, તેથી તેને કોઈ નુકસાન ના થઈ શકે। અગાઉ આ પ્રકારના વુડ થાઈલેન્ડ, USA અને કેનેડામાં પણ જોવા મળ્યા હતા અને ત્યાંના તંત્ર દ્વારા ઠંડી, ગરમી અને વરસાદથી બચવા માટે ત્યાં મ્યુઝિયમ બનાવવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે આપણે અહીં તેને ખુલ્લામાં રાખવામાં આવ્યું છે। જો વહીવટી તંત્ર દ્વારા કોઈ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે તેવી અપીલ પણ કરાઈ હતી। આવો વધારે સાંભળીએ કચ્છ યુનિવર્સિટીના હેડ અર્થ એન્ડ સાયન્સ વિભાગના ડોક્ટર મહેશ ઠક્કરને। आज से कुछ 10 साल पहले कुछ जियोलॉजिस्ट ने वहाँ एक बड़ा वुड लॉग, जो फॉसिल वुड लॉग बोलते हैं, तो जुरासिक काल का जो वहाँ खड़े वहाँ एक बड़ा फॉसिल मिला है और वो उसको हम वुड फॉसिल बोलते हैं।
तो 10 साल पहले या कुछ 10 या 11 साल पहले इसको किसी ने खोजा था, हमारे जियोलॉजिस्ट ने। उससे पहले भी पता था, लेकिन जब इन्होंने खोजा तब उसको रक्षित करने का सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि जबकि ये पूरा वुड फॉसिल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, फॉरेस्ट की लैंड के अंदर आता है, तो ये एक बड़ी समस्या होती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें भी इन्वॉल्व हो जाएगा और तब उसको रक्षित करेगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कुछ जियोलॉजिस्ट ने बोला कि भाई इसको रक्षित करो, ताकि लोग उठा के ले जाएंगे, तो इसको रक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो लॉन्ग बैक 2011 या 2012 की बात है, तब ये इसको रक्षित करके उसको कॉर्डन करके फेंसिंग करके लोगों का आवन जावन बंद कर दिया। लेकिन ये फेंसिंग कब तक वहाँ टिकी रहेगी? लोग फेंसिंग तोड़ के अंदर जाके उसको वेंडलाइज करते थे। वेंडलाइज का मतलब है कि उसको उठा के ले जाते थे छोटे छोटे पीस, क्योंकि वो कई सालों से नहीं, हजारों सालों से वो वहाँ खुला है। क्योंकि ये 10-15 साल की बात नहीं है, जब फॉसिल ओपन होता है और इतने बड़ा लंबा होता है, जो 11 मीटर लंबा एक फॉसिल है वुड, जिसका गर्थ उसका विड्थ है जो करीबन 1.5 मीटर का है। दूसरा एक वुड है जिसका विड्थ 1.5 मीटर से ज़्यादा है और 13 मीटर लंबा है, और उसके बीच में से कई पार्ट टूट गए हैं। तो ऐसे छोटे मोटे फॉसिल वुड वो इर्द गिर्द लगभग 8 से 10 छोटे छोटे पीसीस है, और उसे एरिया में खडीर के बिल्कुल उत्तर की तरफ बड़ी डूंगर की धार है, वहाँ ये ओपन है। अभी ये कई हजार साल से वहाँ ओपन था, और सूरज की गर्मी, पानी और इन पूरी जितनी एजेंट्स है पूरे इरोजन करके थे, उसका टूट फूट के कितने पीस नीचे गिर गए और वहाँ सामने रण के अंदर बह गए, और कुछ पीसेस लोग ले गए। तो अभी कुछ छोटा सा उसका हिस्सा बाकी बचा है। तो 10 साल के बाद अभी लोगों ने वहाँ आना जाना शुरू किया, टूरिस्ट जहाँ वहाँ ज़्यादा लोग आने शुरू कर दिए। तब हमको पता चला, हमारा प्रशासन को पता चला कि ये एक हमारी एक जियो हेरिटेज है, हमारी एक जियोलॉजिकल एक भूस्तरीय सभ्यता है, और उस सभ्यता को और हमारी धरोहर को बचाना ज़रूरी है। तो इसके बाद टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट रखा, जो मेरे ख्याल से 2014 में ये प्रोजेक्ट रखा गया, कुछ करोड़ रुपए का, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था, 8 से 10 करोड़ रुपए का। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेरे ख्याल से कुछ 4-5 साल तो काम भी नहीं चला। कलेक्टर ऑफिस से जो मुझे माहिती मिल रही है, इसके ज़रिए मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद जब काम शुरू हुआ, मेरे ख्याल से 17 में या 16 के मध्य में काम शुरू हुआ इसके आसपास डेवलपमेंट करने का। जब डेवलपमेंट किया तो अच्छी तरह से वॉल बनाना बहुत ज़रूरी था। तो ये कलेक्टर ऑफ कच्छ थ्रू ये सब काम हो रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट है टूरिज़्म डिपार्टमेंट का, लेकिन अच्छा काम शुरू हो गया है, वो बहुत अच्छी बात है। तो जो वुड फॉसिल था उसको आज एक अच्छा रक्षण मिल गया है। तब मेरी एंट्री इसके बाद हुई, क्योंकि जो वहाँ के आर्किटेक्ट्स वगैरह हैं, उन्होंने पता चला है कि इसके टेक्निकल डिटेल कौन बताएगा। जब हम यहाँ बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे, हम बड़े बड़े टैब्लो लगाएंगे डायनासोर के, बिकॉज इस टाइम डायनासोर यहाँ घूमते थे, या तो यहाँ बड़े बड़े समुद्री जीव घूमते थे। तब यहाँ इतना बड़ा लकड़ी आया कैसे, वो भी उनके सामने क्वेश्चन था। तो टेक्निकल चीज़ कौन बताएगा। तो उन्होंने घूम फिर के मेरे डिपार्टमेंट में मेरा कांटेक्ट किया। तब मैंने बोला कि ये एक्चुअली ये ड्रिफ्ट वुड टाइप का एक वुड होता है, जो या तो बड़ा फ्लड आता है और या तो बड़ी सुनामी आता है, तब ये ज़मीन के अंदर से घसीट के बीच जो होता है, जो समंदर का जो किनारा है, तो वहाँ रेत जो होती है, बालू के अंदर ये गड़ जाता है, और समय के बाद कुछ हजारों लाखों करोड़ों साल के बाद वो पत्थर बन जाता है। तब ये वुड फॉसिल ऐसा बनता है धीरे धीरे। तो ये एक्चुअली जब हमने उसके ऊपर रिसर्च किया तब पता चला कि ये करीबन 160 मिलियन साल, मतलब 16 करोड़ साल पुराना ये लकड़ी है,
और इतना बड़ा वुड जो आज दिखने में 13 मीटर है या 11 मीटर है, जो एक्चुअली कितना बड़ा हो सकता होगा, कितना होगा बड़ा, इससे भी ज़्यादा होगा, 1.5-2 गुना ज़्यादा, पता नहीं है। और इसे एक पीस नहीं है, बहुत सारे पीस है। तो ये फिर हमने इसका रिसर्च किया, अध्ययन किया, कौन से पत्थर में ये पाया जाता है, तब पता चला कि 160 मिलियन पुराना ये वुड है। इसके बाद कलेक्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई और यहाँ के प्लानिंग ऑफिसर्स जितने हैं इनके साथ मीटिंग हुई। मैंने कहा कि इतना बड़ा जब वुड के आसपास आप करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट कर रहे हो, तब इस जो मेन हमारा वुड जो है वो अहम है, आसपास जो है वो तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो वुड है वो तो डीके हो रहा है, वो तो टूट फूट रहा है, रोज टूटता है। तो उसको रिस्टोर करने की बहुत ज़रूरत है। तो रिस्टोर कैसे किया जाए वो पूरी टेक्निकल चीज़ है। तो इन्होंने हमारे डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वो काम हमने दिया, इस डिपार्टमेंट को दिया कि आप ये करो, हम आपको इसका एक प्रोजेक्ट देते हैं। तो अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया सिर्फ वुड को रिस्टोर करने का। तो मैंने ये अध्ययन किया, मेरा पायलट प्रोजेक्ट इसमें हुआ। पायलट प्रोजेक्ट मतलब मुझे छोटे छोटे वुड लेके उसको जोड़ना पड़ता है और ये कितने साल तक ऐसा रह सकता है, हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता। तो मेरी लैब में मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत किया, तब पता चला कि कौन सा एडेसिव, कौन सा मटेरियल, कौन सा चीज़ इनको जुड़ सकती है और रिस्टोर करती है नेक्स्ट 25 साल के लिए या 50 साल के लिए या तो 10-15 साल के लिए ये ऐसा हो सकता है और उसको साइड के ऊपर बिखर नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमने किया, 1 साल तक ये सब किया। इसके बाद हमने एक्चुअल रिस्टोरेशन काम शुरू किया। जब हमने ये देखा तब पता चला कि ऐसा रिस्टोरेशन तो पूरे भारतवर्ष में कहीं हुआ ही नहीं है। ऐसा रिस्टोरेशन ये पहली बार कहीं ऑन फील्ड, ऑन साइट, एक बड़ा जुरासिक का लकड़ी जो फॉसिल वुड मिला है उसको रिस्टोर हम करने जा रहे हैं। तब हमने आज सक्सेसफुली उसका कंप्लीशन करीबन 80% हो गया। मेरा 20% काम रिस्टोरेशन का बाकी है। लेकिन जब हम रिस्टोर करेंगे तो वो भी तो ओपन स्काई के अंदर, उसके ऊपर गर्मी या बारिश सबका सिस्टम तो इसके ऊपर होना ही है। तो इसको बचा के कैसे रखें? तो इसके ऊपर भी एक कैनोपी अगर लगाया जाए, उसके ऊपर एक अच्छी तरह से ब्यूटीफुली जो टूरिस्ट अट्रैक्शन में और आसपास की जितनी इकोसिस्टम है, जो हमारी रण की इकोसिस्टम सामने ही बैठी है, बिल्कुल रण के सामने है, वहाँ हजारों या लाखों की संख्या में फ्लैमिंगोस हर साल आते हैं और इतना नयन रम्य दृश्य वहाँ सामने दिखता है। वो उसको हम मार के तोड़ के ये डेवलपमेंट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे ही स्मार्टली आप कहीं कैनोपी लगाओ तो ये इसको अभी हम बचा सकते हैं। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े वुड पूरी दुनिया में हमने देखे, थाईलैंड में भी है, यूएसए में 2-3 जगह है और कनाडा में भी है। इस वृक्ष का मैंने इस हर जगह से जितना मिल सकता था नेट के जरिए हमने अध्ययन किया, तब पता चला कि ये जब वुड इतना बड़ा मिलता है तो ये आसपास एक बड़ा म्यूजियम ही बना देते हैं। हालांकि ऊपर उसका गर्मी और ठंडी और बारिश से उसको कहीं कुछ इरोजन ना हो जाए, इसलिए बड़ा म्यूजियम वहीं ऑन साइट बना देते हैं। हालांकि हमने यहाँ ओपन रखा है, तो उस ओपन रखने के बाद हम उसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। वो मेरी नम्र विनंती प्रशासन से भी है और ये पूरे भारतवर्ष में बहुत ही अहम चीज़ होने जा रही है।